Hi guys, this is Ilachi Nagda and you're watching Chai with Ilachi. Today we have with us an influencer who has started her journey from scratch. We'll introduce her and she'll give you a breakdown about what she is and how she is. Ashi, can you just, tell the audience? So yeah, hi, this is Ashi, and I'm really appreciate you are doing such a great thing to Thank you so much. like inviting us, and really it would be pleasure to be here. And see, I work as an influencer model and YouTuber as of Correct, now. So people who follows me and do subscribe my channel, they knows like I'm doing such great things. correct. And apart from this, I write concepts मेरी Okay, जिंदगी के बारे में, लोगों की जिंदगी के बारे में. तो वही मेरी रील्स के अकॉर्डिंगली पीपल कैन go through कि हाँ आज ये वाला कंटेंट आ रहा है and this she correct. is uploading such things. So let me get this straight. You are from Delhi originally. Yeah. So how was your childhood like? How was your childhood? कैसे आपको बॉम्बे आना हुआ और क्या था बेसिकली वो? So it's basically 6 years now in Mumbai, and very much, I'm happy with the work and people around with me and with me. So, yes, I worked out from the office, and then I've given audition in Emotional Atyachar. That was the like biggest, changed in Correct. my life, turn जिससे मेरी life हुई है. And I've given audition in Malviya Nagar, and I was very younger, like लोगों को पता भी नहीं है कि जब मैं college में थी. So through that time, I have done this, this show. So my schooling and I've graduation from Hansraj College, and through I have done with non collegiate से मैं passed out हूँ, and not a single boy in my college and school. That is also a great life कि मैं हमेशा लड़कियों में ज़्यादा रही हूँ. So I know like how people feels when they around with girls, and मुझे इसीलिए अच्छा लगता है people who connect with me. यहाँ पर बॉम्बे आने के बाद like I have so many male friends now. They being with me a good note, और मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना. So being a Delhi Heights, मुझे लोग वैसे सच बताओ बोलते हैं कि you're not from Delhi, बिकॉज़ वहाँ के लोग थोड़े से बोलते हैं ना चतुर और तेज़ होते हैं. आई एम आल्सो चतुर मतलब इन अ गुड टर्म. Yeah, 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 हाँ, yeah. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का भला करना चाहिए, गुड कर्मा नॉट बैड कर्मा. सो Correct. दिस इज़ अप टू मी. So from Lajpat Nagar to the limelight, how was your first audition in Mumbai, or was it यार, in Delhi itself? How was it? it was really a great moment. Still, I'm like got shivering. मतलब मुझे वो पल याद आ जाते हैं. Like I've been, first time I've shot with Ranveer Singh and Sonakshi. In my entire life, I've never seen any, Bollywood celebrity in front of my eyes, and that was the moment where I thought, like, why? If they can make something to their self, definitely I will go to Mumbai Correct. once again. And then I've got completed studies. I asked my mother, "Mama, please let me go," because मैंने अपनी mom से कभी भी कुछ नहीं मांगा है. Hmm. And that moment when I have asked my mother, "Please मुझे 1 महीने के लिए जाने दो," you won't Hmm. believe that 1 month and now it's been 6 years. मैं Hmm. सिर्फ अपने parents से मिलने जाती हूँ. So वो journey कैसा था आपका convincing to convince the parents that you want to go to Mumbai for a month? वो journey कैसा था? How was बीइंग that? अ यंगर इन माय फैमिली, आई एम वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, और हाँ. सब लोग मुझे मतलब होता है ना कि यार इसको कुछ हो ना जाए, शी इज Hmm. गोइंग अलोन. माय मदर यूज्ड टू कम एंड ड्रॉप मी टू द एयरपोर्ट अलोंग विद माय सिस्टर एंड ब्रदर, एंड शी स्टिल यूज्ड टू क्राई कि मुझे भी ऐसा लगता है 6 साल मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ. बट Hmm. आई यूजुअली गो इन अ मंथ एंड टू ट्वाइस, कि मैं जाती हूँ एंड टू लिव विद माय पेरेंट्स. बट वो कन्विंसिंग पावर, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ नहीं मांगते अपने पेरेंट्स से, और सिर्फ 1 या 2 चीज़ अपनी ज़िद बोल दो या फिर करियर के बारे में, तो शी इज़ क्वाइट हैप्पी. Hmm. बट अंदर व्हाट शी इज़ फीलिंग, आई नो दैट. बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, आई नो व्हाट माय मदर इज़ गोइंग थ्रू कि उनकी एक छोटी बेटी टू शी इज़ गोइंग टुवर्ड्स मुंबई. एक समुद्र पार तो बोलती ही है. तो बस इट्स ऑल गुड. So what were the first things that came into your mind when you landed in Mumbai? I had no idea why I came here, with whom I have to meet. But one director like asked me, "You Hmm. send me a profile," and you Hmm. won't believe that before 6 years, when he saw me meeting me in real, he was like, "You look very younger." I said, "Okay, I know I look हाँ. young." बोले, "No, but हम आपको किसी और चीज़ में कास्ट करेंगे." I was like first rejection in my life. पहली बार बॉम्बे आके बोलते हैं ना वड़ा पाव खाया, यहाँ सोए वहाँ सोए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. Because I am from not the very rich family, but upper middle Decent, class yeah. family, decent family. तो मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं स्टेशन पर रुकी, मैंने वड़ा Hmm. पाव खाया, something like that. But through in my journey also, I don't know where to stay because Correct. this is Mumbai. Obviously, अब yeah. 1 month तो ऑफ कोर्स
because you cannot afford a hotel in Mumbai, and where I don't know, I don't have any friends in Mumbai. So what was your So experience sharing a flat in Mumbai? Like, yeah, it is very bad मतलब actually. दिल्ली के जो फ्लैट्स होते हैं वो they are huge, दिल्ली के humongous. घर होते घर होते हैं. हैं, हाँ हाँ. मुंबई में फ्लैट्स When होते I came here, I was like, first time जहाँ रुकी, please terrace तो है ही नहीं यहाँ पर, access ही नहीं है यहाँ पर. Correct. And with the girl I'm staying, and she was like, you won't believe. After 2 days, she's thrown me from her house, and she kept my deposit, everything. मैं छोटा बच्चा एकदम, and I was like crying in front of her, and I was like, why you are throwing this? She's like, no, if you will not allow my boyfriend, so I will throw your bags and everything. You will not stay. I said, okay, give me my money back. There is no refundable. Now you go. And then at the moment, and na Lotus petrol pump in Oshiwara, I was like standing whole night and cried a lot in Correct. Mumbai city, and could not able to ask my mother, like, what the fuck is going around with me in 2 days in Mumbai. And मुझे पता है कि वो ये बोलेंगे, बेटा कुछ नहीं है, तू घर वापस आ जा. And then I realized, no, I will not tell to my parents. First time मैंने अपनी mom को मतलब अपनी जिंदगी में झूठ बोला होगा. But then also so and so कि for a good note, कि मुझे लगता है कि कई बार आपको जिंदगी बनाने के लिए, अच्छी चीजें पाने के Correct. लिए, I think it should be okay अगर आप कुछ चीजें छुपा रहे हो. So how was your first paycheck? Like, how did you land your first audition in Mumbai? आपको first paycheck मिला तभी आपका feeling कैसा था, and how did that go? See, as a, I am no person in the industry and no background. I'm not a nepotism kids, so it's very Correct. easy for me to get such opportunities. Now, मैं ये नहीं बोलूँगी like I'm like big celebrity, बस या लोग जानते हैं, पहचानते हैं, people used to meet me. But that time I realized when I've been to the audition in Aram Nagar, there also I got rejections. फेलियर बिकम्स सेलिब्रिटी, बहुत अच्छी फीलिंग होती है. एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ इतना इजीली नहीं मिलती. यू हैव टू वेट, पेशेंस के साथ आपको करना पड़ता है वो चीज़ें. बहुत सारे ऑडिशंस देने के बाद वन डे आई गॉट सेलेक्टेड, एंड देन आई रिमेंबर द नेम ऑफ रवि अलावत सर. ही गेव मी like 15,000 rupees check in my hand before the shoot. He was like, you have to come there. And the Rashmi Desai was the second person who's shooting with me. And you won't believe, बीइंग अ दिल्ली हाइट्स, चांदनी चौक में बहुत सारे गोल्ड्स के ज्वेलरीज है, शोरूम्स है. सो यहाँ पर मेरा शूट हो रहा है, वहाँ पर मेरी फैमिली बीन टू द चांदनी चौक गए, एंड देन होर्डिंग्स, माय मदर सॉ मी एंड क्राइड, एंड पिक्चर क्लिक कर रहे हैं. एंड दैट टाइम शी इज लाइक, तुझे जो करना है तू कर ले. लाइक शी इज गिविंग मी मोर टाइम टू स्टे इन मुंबई. अभी उनको हो गया कि ठीक है, 1 महीना बोला था, उससे पहले शी गॉट सेलेक्टेड, एंड आई हैव गॉट कंप्लीटेड लाइक 2 शूट्स, राइट. एक इंसान की सैलरी 8-10 हजार होती थी 6-7 साल पहले, एंड सडनली आई हैव गॉट लाइक 30,000 इन माय पॉकेट, एंड इट्स वेरी बिग अचीवमेंट, आई थिंक. So I think during this phase itself, while you were in Mumbai, you fell in love with someone. So how was that experience? I love myself now. मत याद कराओ यार. No, I mean it's a life lesson as we call it. So how did that happen, and कैसे, कहाँ मिले, क्या हुआ? मुझे ऐसे लगता है कि आई शुड नॉट टॉक अबाउट द पास्ट, बट या आई थिंक एट दिस मोमेंट इट्स वेरी रेलेवेंट फॉर मी टू पीपल हु गोना वॉच दिस पॉडकास्ट. मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी. एक ही चीज फिलहाल बोलूंगी, देन आई विल कम टू द पास्ट ऑल्सो. अभी की जो सिचुएशन है, काम, कंपोज, दिस थिंग्स, मेडिटेटिव गर्ल, जो मैं नहीं थी, ठीक है. आई वॉज वेरी लाइक, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, प्यार में. दिल्ली की भाषा में बोलेंगे तो जल्दी. झल्ली नहीं यार, मतलब सन की बोल सकते हो आप, कि आई वांट द थिंग, इफ आई लव समवन तो मुझे वो चाहिए. करेक्ट. मैं मुंह तोड़ दूंगी किसी का अगर वो बोलेगा कि नहीं ये मेरा है, ऐसा वाला सीन था मेरा. पर ठीक है, बीइंग इफ यू टॉक अबाउट माय पास्ट, मैं नाम नहीं लूंगी, कोई भी कास्ट, पर्सन या शहर के लोग गलत नहीं होते. गलत आप इंसान से मिलते हो, एंड दैट हाउ यू रियलाइज कि यार आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, लोग आपको रोक रहे हैं. और गलती मुझे लगता है ना कि अगर कोई इंसान आपके सामने या साथ रहकर कोई फर्स्ट टाइम गलती कर रहे हो, बोलते हैं ना कि किसी से कोई गलती हो रही है और आप उसको बार बार इग्नोर कर रहे हो, टू स्टे विद द पर्सन बिकॉज यू लव हिम द टू द बॉटम ऑफ योर हार्ट, यू वांटेड टू स्टे विद हिम. मतलब पहली बार किसी लड़के को देखकर मुझे लगा आई विल मैरी टू द गाय. बस खत्म, जिंदगी खत्म, काम भी नहीं करना है मुझे, बस काम करना है इसके लिए, सो आई कैन मैरी हिम.
मतलब I forgot my parents at the time यार, मतलब I have told you the starting of the podcast कि I am very lovable kind person to the family, but then I realized कि यार नहीं, यही मेरा प्यार है, यही सब कुछ है। एंड सोचो वो इंसान मतलब छोड़कर आपको चला जाए आफ्टर 6 years, 6 साल, मतलब दिन में घंटे भी 24 होते हैं, तो Correct. कितने आवर्स आई एम स्टेइंग विद द पर्सन, एंड नाउ इट्स बीन 3 years, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ शिट। Now love becomes shit for me. Correct. So, because of these kind of emotional gaps, how do you heal from it? I've cut off everything Hmm. from the, of course, social media. You won't believe, मैंने 6 month में I've got silver award on my YouTube channel. People literally appreciate me. मैं हरिद्वार गई थी, and then I've been to वैष्णो देवी. वहाँ पर one girl, came and said, दीदी आप comedy video बनाते हो ना on YouTube? I said yes. बोली मैं आपको subscribe करती हूँ. I was like wow, thank you so much. And I have got thing in my mind कि अगर मुझे यहाँ इंडस्ट्री में कुछ नहीं मिल रहा है to give auditions, no, I have not done any good, as of now you can say movie जो मुझे करनी है इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स हर इंसान का ड्रीम होता है टू गेट द आईफा अवार्ड, Hmm. बट देन प्यार में धोखे खा खा के ना ऐसा हो गया है कि अभी सबसे कट ऑफ हो गया। अभी कोई इंसान सामने रिंग लेके बैठेगा ना कि भाई मैं मर रहा हूँ तेरे लिए, तो तू मर जा, नहीं चाहिए। ऐसा हो गया है मुझे अभी। Correct. So now we move on to a little bit of your content creation journey and everything, where in today's age, I've seen a lot of people, even men or women for a matter of fact, they feel that vulgar content, uncensored content, उससे ज़्यादा views आते हैं, उससे ज़्यादा followers बढ़ते हैं. But you have kept your content raw. It's more that As way. I told you, I Hmm. write concept on my Correct. life, and whenever I see web series and something, then I module those things कि यार मैं अगर इसकी जगह होती, मेरे साथ ऐसा हुआ होता, तो what I can portray this in my reels and such situations. And yes, of course, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे वल्गर कंटेंट आते हैं, मुझे ऐसा लगता है बनाने वाले तो गलत कर ही रहे हैं, जो ऑडियंस उनको सपोर्ट करी उनको जाके मैं मारूं, क्यों करते हैं फॉलो उनको? Correct. why these such people such follow such contents Hmm. and people, जो मुझे लगता है कि गलत है। आज की जनरेशन नहीं, आने वाले टाइम में मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट एवरीथिंग कम्स बाय मनी, संस्कार भी एक चीज होती है। Correct. एंड दैट पॉइंट ऑल्सो आजकल इफ टॉक अबाउट 5 years से लेके आई थिंक एज गैप ऑफ 13-14 years, गर्ल्स एंड बॉयज आर मेकिंग कंटेंट एंड दे आर नॉट डूइंग एनी स्टडीज और समथिंग। सी, मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है, अगर मैं कुछ नहीं बनी, आई नो, पैक माई बैग्स एंड आई कैन डू सच थिंग्स। कुछ नहीं तो मेरे पास एटलीस्ट मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री, आई कैन डू एनीथिंग। बट राइट नाउ पीपल, इवन पेरेंट्स डजंट नो, मतलब they create such accounts for their kids, and they are uploading just because of to get fame, name and money. Hmm. ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट को इस पर, जैसे टिकटॉक बैन हो गया, मेरा टिकटॉक चला गया 4 million का टिकटॉक बैन हो गया, तो ये जैसे इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे लेबल्स आने चाहिए, नॉर्म्स आने चाहिए कि इतना आप दिखा सकते हो, इतना आप नहीं दिखा सकते हो। Hmm. सेंसर्स उस पर भी अप्लाई होना चाहिए। Correct. So बाकी what's your daily routine for managing content? हाँ, मतलब आजकल तो मैं बैकअप में वीडियोज़ रखती हूँ, जब इंसान अकेला होता है तो उसके पास समय ही समय होता है। Correct. 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 पहले टाइम नहीं मिलता था, अब टाइम ही टाइम है। सो आई राइट, लाइक आई मेक कंटेंट, 3-4 दिन रख लिए अपने पास बैकअप बना के। इवन आई एम बिज़ी एंड गिविंग ऑडिशंस आल्सो, मीटिंग पीपल, तो मेरे पास रहता है बैकअप। So you know many creators, हुँ, many creators, many या influencers, but आपने कभी collaborations या कुछ, मैंने आपका particularly प्रोफाइल में कुछ हाँ। ऐसा देखा नहीं है, उसका रीजन आई कुछ? रिमूव्ड इट, मतलब इफ आई टॉक अबाउट लाइक बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, हम्म. फैजू वगैरह, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, बट देन ऑन दिस लेवल एवरीवन रिमूव्ड मी। क्योंकि जब आप उस लेवल पर जाते हो 0 से 100 के बीच में, हम्म. इट्स नॉट अबाउट यू आर ऐसे जरूरी नहीं है कि 100 लोग मुझे पसंद करें और 100 लोग मेरे साथ रहे, एंड वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है टू गेट सक्सेस। आज मेरे साथ सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। आज मेरी शायद 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। एंड सबसे अच्छा मैं सिंगल हूँ, वो भी बहुत खुश हूँ। तो उस जर्नी में मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं अनटिल और अनलेस मैं उस बड़े रीच पर जाऊँ। आज Correct. अगर मेरे पास सब कुछ है तो पीपल विल कम टू वर्क विद मी, दे विल हम्म. कम इन माय लाइफ एंड ओके आशी सेलिब्रेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट ठीक है, आई एम द पर्सन, लाइक आई नेवर फोर्स एनीवन टू मेक वीडियोस विद मी।
और जो Hmm. लोग बनाते हैं कुछ ऐसे भी है लाइक अरे यार स्नैपचैट पे ऐड कर लो, क्यों कर लूँ मैं तुझे स्नैपचैट पे ऐड भाई? क्यों करूँ? Correct. एक से दिल टूटा नहीं है अभी तक, यू नो दैट हीलिंग इज़ थिंग्स गोइंग अराउंड और मुझे नहीं करना है। क्योंकि मुझे पता है मे बी आई गेट कनेक्टेड टुवर्ड्स द पर्सन अगेन और फिर मेरे लग जाएँगे 10 साल के लिए जो मैं नहीं चाहती। But is that the only reason why you're stopping yourself from falling into love again? This is not the thing, right? I have given 100%, 1000% to my past relationship, but शायद मैंने बोला ना कि कोई इंसान जब चला जाता है वो इतना उसको मतलब इतना उस इंसान ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया है ना कि अभी Hmm. सामने वाला बंदा सही भी होगा तो भी मुझे नहीं होगा ट्रस्ट, नहीं होगा, क्या करूँ? But कभी ना कभी तो आपको करना ही वो पड़ेगा. दैट मोमेंट विल कम, मे बी गॉड हैज़ रिटन समथिंग फॉर मी Correct. स्पेशली Correct. 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 विद सुनहरे अक्षर। So, like, basically from there is always an influencer's journey where, there is a kind of uh, a fan base that is created. I think we were speaking, हम लोग जब बात कर रहे थे एक बार, तभी आपने बताया था कि एक फैन ने आपको अपने हॉस्पिटल बेड से, he opened up about talking to you and everything, and he opened about his mental हुँ, challenges and हुँ। everything. So, how do you cope up with that, and how do you entertain such people? Like, वो कैसे होता यार थिंग इज़ नो दैट वाज़ नॉट फैन। है? अच्छा, can all your fans reach out to you directly like that? See, I used to come, it was talking about like in lockdown where we don't have anything to do, Correct, bajao correct, thali correct, and do correct. light some diyas. So I used to go, you know, on social media, Instagram पर जहाँ पर people come and they do jamming, Hmm. जहाँ पर songs गा रहे हैं. So उनमें से एक लड़की थी, she was like writing throughout the Hmm. days and night कि दीदी मुझे live में ले लो, live में ले लो. I picked her. Like I was like, what happened? And I've just seen her messages every day. DM भी इतने सारे आते थे. Then suddenly I got to know she's not feeling well. And that time also I was like, यार अभी उस time मेरा relationship था. I was happy. So I can tolerate anyone in that time. जब आप किसी को heal करने की कोशिश करते हो तो उस time पे आपको भी कई बार पता होता है कि I am not good, you know, from inside. Maybe somehow मुझे अच्छा नहीं लग रहा. बस सामने वाले को बैठ कर सिर्फ मेरी सूरत देखकर अच्छा लग रहा है. तो एट दैट टाइम ऑल्सो मुझे लगता है कि नाउ योर टर्न आशी, समवन नीड्स यू, माई टाइम, माई यू नो गाइडेंस। आई एम नॉट मे बी नो वन टू गिव डायरेक्शन टू Hmm. द पर्सन जिसको मतलब सही राह में दिखाओ, बट एटलीस्ट सम हाउ अगर किसी को मेरी जरूरत भी है, 100 लाइनों में से एक इंसान को मेरी लाइन टच कर गई तो मुझे लगता है कि आई सेव्ड हर। Correct. एंड यू वॉन्ट बिलीव, शी वर लाइक इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से शी केम एंड लाइव एंड मैंने बोला कि भाई तूने डॉक्टर कैसे तुमको फ़ोन दे रहे हैं, उसको ग्लूकोज़ लगाए सब कुछ, एंड शी क्राइड अ लॉट। आई आस्क्ड हर व्हाई यू आर हियर, तुम्हारी मदर कहाँ है? बिकॉज़ आई डोंट नो हर पर्सनली। देन एक अभिषेक शर्मा करके पुलिस में है एंड मैं वो भी इंस्टाग्राम पर है एंड ही यूज्ड टू फॉलो मी, ही Oh, इज़ फ्रॉम दिल्ली। okay. मैंने उनको बोला जयपुर के नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन में है ना, यू गो देयर एंड आप प्लीज़ पता लगाओ कि ये लड़की यहाँ पे क्यों है? And she's very young, like 11, 12 years old girl. Hmm. Then I got to know someone, you know, entered in her house and थोड़े गरीब थे वो लोग और 2 लोग आए और उसको छेड़-छाड़ के चले गए। And then she of course she's kid, almost 11, 12 years old girl, बहुत ज़्यादा उससे बदतमीज़ी की, घर में तोड़-फोड़ की and then she went to the hospital. Oh my God. एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा यू नो दैट राजस्थान की थी वो, आई डोंट रिमेंबर द यू नो Hmm. विलेज नेम। उसकी मदर शी इज़ नॉट इवन कमिंग ऑन द कैमरा कि मुझे तो आना ही नहीं, रो रही है, रो रही है। देन मैंने उसको बहुत समझाया, यू वोंट बिलीव मैंने उसको अपनी ज़िंदगी के 3 दिन दिए। मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि तेरे को कोई काम नहीं है लोगों से बात करने के अलावा? मैंने बोला अगर किसी की लाइफ बच रही है तो आई Correct. एम द वन। अगर भगवान ने इतने सारे लोगों में से मुझे उसके पास भेजा है, कुछ तो होगा ना। सो आई बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थॉट्स कि कोई बात नहीं यार, आपके तो लगे हुए, आप ज़िंदगी में किसी को बचा लो। Correct. So, what's the biggest myth of content creation? Like, पब्लिक को लगता है हाँ कंटेंट बनाना तो इजी है, फोन पकड़ के जो वीडियो चालू करना है. सो देखो, आपके हिसाब से ऐसा क्या है? डिपेंड्स ऑन यू नो व्हाट कैटेगरीज़ दे हैव टू चूज़। हम्म. लाइक माय कैटेगरी इज़ ब्रोकन हार्ट जो मैं हमेशा रहती हूँ। तो मैं स्टोरीज़ बनाती हूँ, ऐसा नहीं है मतलब पहले कंटेंट जो भी लोग देखते थे ना, उन्हें लगता था even though being into relationship also I like to listen, you know, sad songs, sad stories सुनना मुझे पसंद है। उसके चलते मैं खुश रहती हूँ।
तो दैट इज माई बिगेस्ट थिंग आई थिंक। मुझे अच्छा लगता है सैड रहना और खुश रहना भी। इंसान के दो ही तो रूप होते हैं, सैड एंड हैप्पी। Correct. तो इन दैट केस आई मेक कंटेंट। तो मुझे ऐसा लगता है आज की जनरेशन के लिए आप कुछ अच्छा करो, न्यू करो। लाइक बॉलीवुड में भी कितनी सारे ऐसी मूवीज हैं जिससे मुझे देखकर ऐसा लगता है कि यू नो आई कैन लर्न समथिंग। Obviously, तो yeah. इफ समवन इज फॉलोइंग यू, व्हाई समवन विल फॉलो मी? अभी पहले जैसे मैं सैड कंटेंट बनाती थी तो एवरीवन लाइक भाई लाइन में आ रहे हैं, अच्छा उनको लग रहा है सैड है, ब्रोकन है, तो चलो हम अपना भी नंबर लगा ही लेते हैं। सो आई हैड स्विच दिस टू ब्यूटी एंड फैशन एंड नाउ जिम कंटेंट ऑन माय पेज। Okay. दैट इज द रीजन आई हैव रिमूव्ड एवरीवन फ्रॉम माय इंस्टा। Okay. मैंने 500 फॉलोअर्स से अपने फॉलोअर्स आई गेस 50 रखे हुए हैं, Okay. क्योंकि वो 350 ने मेरे कोई काम नहीं आया। So, is there a moment where you have felt like you should quit YouTube and just, go with your normal life? ऐसा है 2 moment? बार ऐसा हुआ है एंड मतलब वो जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकती। दैट टाइम व्हेन आई गॉट ब्रेकअप, यस आफ्टर 2 इयर्स, ये मेरी बात पहले भी रह गई थी। 6 महीने में आई गॉट अवार्ड, सिल्वर अवार्ड। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। अच्छा मैं आज 2 लाख पे हूँ, उस शख्स को मैंने 1 मिलियन पे पहुंचा दिया। Oh, wow. आई वाज मैनेजिंग हिज अकाउंट यूट्यूब पे, मदर्स वे ही इज हैविंग 1 मिलियन। अगर कभी ये पॉडकास्ट पहुंचे तो आई वांट कि वो सुने। लोग कितने बेशर्म होते हैं कि आप अपना समय दे रहे हो, अपनी जिंदगी दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, सबसे बड़ी बात इमोशनली कनेक्ट हो, उसके चक्कर में आप अपनी दोस्तों को भूल रहे हो, आप अपनी फैमिली को भूल रहे हो, सब कुछ। लाइक वन पर्सन इज बिकम्स गॉड। Correct. आज मैं भगवान से सब मांगती हूँ ना, तो पहले ये होता था कि एक्सपेक्टेशन इज लाइक वेरी बैड। अब जिंदगी में किसी से एक्सपेक्ट मत करो, ना अपने घर वालों से, ना अपने पति से, ना बॉयफ्रेंड से, ना दोस्तों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एट दैट टाइम ऑल्सो कि जो यूट्यूब पर मैंने कमाया है, मुझे वहाँ 1 मिलियन पर होना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई थिंग आई एम इमोशनली कनेक्टेड विद द रॉन्ग गाय, जो मैंने खो दिया। So, there is always a dark side to the industry. With In the industry, there is always a इंडस्ट्री dark side to the industry. मेरी डार्क नहीं नहीं साइड। नहीं, आपकी भी dark side है? आप प्लीज प्लीज स्प्लिट्स मिला कर रहे हो, ऐसा लग रहा है यार। नहीं नहीं नहीं. So there is a dark side Oh, to the shit. industry, and you face several setbacks, and I think one setback is with somebody very famous as well. नाम लूंगी ना नाम अभी, नहीं लेना ये चैनल नाम नहीं डिलीट हो लेना जाएगा। नहीं नहीं नहीं. So what was See, that story? बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है आई शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। Correct. इफ लाइक आई वाज टेलिंग यू, मैंने अपनी एक फैन की जिंदगी बचाई एंड दैट इज हम्म ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं किसी के पास जा रही हूँ, आई लाइक समवन्स कंटेंट। हम्म ऐसा बहुत बार होता है कि मैं लड़की हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं किसी लड़के को मैसेज डाल रही हूँ टू हैंग अराउंड। मे बी आई लाइक योर यू नो कंटेंट, that's why I'm here. I like Correct. your work, that's why I'm you know we are sitting. तो मुझे ऐसा लगता है कि I have just taxes to the wrong people in industry, जो मतलब नहीं हेल्प करते हैं। और मुझे जो लोग करते हैं, पता नहीं मेरा इंस्टाग्राम देख के उनको क्या लगता है कि क्या कर देगी ऐसा, बट दैट इज फेक एक्चुअली। when you sit with people and when you meet continuously, आप किसी के साथ बैठोगे, then only you will get to know the nature and everything. एक तो मुझे वो बहुत गलत लगता है वेयर पीपल आर कमेंटिंग एंड यू नो कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ. in Useless my you know bio also, yes I worship God। मेरे फोन के वॉलपेपर पे, मेरे किचन पे, हर जगह मतलब कान्हा जी की फोटो रहती है और हनुमान जी की। तो उनको लगता है कि यार अगर मैंने ये कपड़े पहन लिए तो इट डजंट मीन कि मैं अंदर से गलत हूँ। दैट इज प्रोफेशन। आप किसी शख्स के प्रोफेशन पर सवाल नहीं उठा सकते ना। Correct. अगर मुझे किसी गाने में बोल्ड करना मिल रहा है, आई एम रेडी टू डू दैट, बट विद द गुड ब्रांड्स, राइट? वहां पर भी वो लोग कमेंट करते हैं कि क्यों ऐसा कर दिया, एंड अब आते हैं उस पर मैं कुछ ज्यादा बोल देती हूँ ना, नहीं क्योंकि नहीं मेरी चलेगा. जिंदगी में किस्से इतने हैं कि समय खत्म हो जाता है बताते बताते। It's okay. एंड एनीवेज यस, इंडस्ट्री की अगर डार्केस्ट साइड की बात करूँ, मेरी ओपन अप यार, फिर मुझे करण जौहर जैसे लोग ब्लॉक कर दे तो कर दे, आई डोंट माइंड। मैं खुद की प्रोड्यूसर हूँ और बन जाऊंगी। क्योंकि why I'm getting such messages, you won't believe। I would not share the name here। मेरे तो सारे घर में भी पता है। I have the video as well। Someone texted me and said, Ashi, I wanna launch you। I was like feeling very happy। Wow, सिंगर है, बता देती हूँ। सिंगर, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। वाओ, इस बंदे ने मुझे मैसेज किया यार, मतलब कुछ तो बात है मेरे में।
तो ही टेक्स्टेड मी एंड सेड कैन आई कॉल यू वीडियो कॉल। मैंने बोला इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं होता है, वीडियो हम्म कॉल तो नहीं होती है, ऑफ कोर्स यू हैव हम्म टू फॉलो मी। ऑफ कोर्स ही विल करेक्ट नॉट एबल टू फॉलो मी, पता लग जाएगा कोई रैंडम लड़की को फॉलो किया है। और फिर देन ही ड्रॉप द मैसेज, हिज मैनेजर कॉल्ड मी एंड सेड यू नो ही वांट्स टू स्पीक टू यू। आई वाज लाइक ओके, मैंने वीडियो कॉल किया एंड माय एक्स वाज लाइक बिहाइंड मी। उनको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता मैं किससे बात कर रही हूँ। देन उसने वॉइस सुनी, यू वोंट बिलीव, इतना फेमस बंदा, मेरे एक्स ने वॉइस सुनी वीडियो पर, नहीं माय गॉड इज कॉलिंग यू। हाँ अभी तू शांत हो जा, 2 मिनट बात करने दे। एंड देन सडनली ही सेड यू नो आई विल बुक द होटल दिस एंड दैट, ओके आई विल लॉन्च यू। मैंने बोला क्यों, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं होटल में जा सकूं, करेक्ट मुझे नहीं जाना। एंड इफ यू वांट लॉन्च मी यू नीड टू आस्क मी, आई शुड सेंड यू माय प्रोफाइल फर्स्ट। आपने मेरे बारे में कुछ नहीं देखा। हाँ करेक्ट फर्स्ट, हर बंदे की एक चीजें लाइन होती है, ओ माय गॉड यू लुक हॉट। अरे मुझे काश तू मुझे क्यूट बोलता भाई तो मुझे क्यूट बोलता तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता, आई कैन यू नो टेक दिस फर्दर। मतलब लोग कितने लस्टी होते हैं, ऐसा होता है क्या? होता है, बहुत होता है। Being a man, sorry, I'm नहीं, telling इसके you. लिए मैं बोल रहा हूँ, आई सेकंड यू ऑन दैट, आई लिटरली Yeah, why सेकंड यू ऑन people दैट। are lusty so much in this Kalyu things. It is not just Kalyu, it is about the part of the industry as well. It is the industry that you are in. इंडस्ट्री भी नहीं यार, वेयर आई वर्क ना, वहाँ पे भी ऐसे ही हाल है। मतलब मुझे लगता है मेंस आर लाइक दैट। So फिर वो इंस्टेंस में क्या हुआ एग्जैक्टली? I जब blocked भी him. हाँ He was doing वीडियो fuck. What the fuck he was doing? I should not share here, but I'm telling you, he was doing some masturbate thing. ओह शिट, ओके सोचो, मैंने उसको हाँ ब्लॉक कर दिया और मैं उसके गाने सुनती थी, मैं उसको एप्रिशिएट करती थी। फिर मैं ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬॉय ਹੋ हाँ ਕੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, थोड़ी तो शर्म कर ले। करेक्ट, बस फिर 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 भाई तो ने हो फोन गया, ही काट करेक्ट। दिया। सो what do you have an advice as the like for the girls जिनको स्क्रीन टेस्ट ऑफर होता है, उनको क्या, उनके लिए क्या एडवाइस आपके लिए? See, everywhere you know people are getting such opportunities, हम्म but मुझे लगता है this is like short term game where girls are doing this। हर इंसान की अपनी एक पर्सनल जिंदगी है, आई एम नो वन टू स्टॉप समवन, राइट? करेक्ट और अगर किसी को लाइक सपोज टू बी मी, मुझे कोई अगर ऐसे ऑफर आ रहे हैं तो आई विल से नो। दैट्स व्हाई आई एम हियर सिंस 6 years यार। अगर मैंने उतना अचीव नहीं किया तो मैं मेहनत करके जितना अचीव कर पा रही हूँ, आई एम करेक्ट डूइंग दैट, राइट? तो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, पीपल आर डूइंग इट बाय चॉइस, सम पीपल आर डूइंग इट लाइक दे डोंट हैव मनी और समथिंग। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट करेक्ट दिस, बट वो गलत है, किसी इंसान की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कर्मा इज कर्मा। आई डू बिलीव इन कर्मा। यस। सो यू मेंशन लक, नेपोटिज्म एंड अभी थोड़ा बहुत हम्म। कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात भी हो गया, जो इंडस्ट्री का टर्म है। So how have you defined all these terms in your journey till now? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पापा अमिताभ बच्चन होते, जो नहीं है शर्मा है, तो 100% मैं यहाँ नहीं बैठी होती, मैं यशराज में बैठी होती। दैट इज 100% ट्रू। नेपोटिज्म मैटर, मतलब नेपोटिज्म है। सेकंड, लक हम जैसों के लिए, हम्म बेचारे जो दिल्ली से उठ के यू नो आ गए हैं फ्लाइट में बैठ के, देयर इज नो वन। लक है, वेयर लक मैटर्स, जहां पर आप इंस्टेंटली आपने वीडियो डाली एंड वो एक वो आया था टिकटॉक, 2 लड़कियां अचानक से चल गई, करेक्ट बहुत हार्ड करेक्ट कर करेक्ट रही थी वो करेक्ट लोग, करेक्ट 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 एंड दिस रील विल बूम, लाइक वीडियो वेंट वायरल। तो दैट इज लक। बट इन दैट केस ऑल्सो उस बेचारे ने कितनी मेहनत की होगी, क्या पता वो उसकी 100वीं या आई 200 थिंक वीडियो होगी। उसका भी नाम आशी ही था, if I'm not आशिकी wrong. में आशी, शी इज आशिकी फ्रेंड ऑफ माशी, या माइन, शी या इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन ना, दैट्स व्हाई आई एम या टेलिंग यू। या मतलब वो लक है। आई वाज डूइंग जिम और सब, अरे ये लड़की की वीडियो देख, मैंने फोन लगाया, भाई तू तो वायरल हो गई। या तो ये लक है, या वो लक को मैं मानती हूँ, या मतलब ठीक है, हर इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए। सो आप बॉम्बे आई थी एक्टिंग परस्यू करने, एंड देन एक्टिंग आपकी रह गई और अभी आप इन्फ्लुएंसर हैं। हाँ, सो हाउ वाज दैट जर्नी? दैट हाउ इज जर्नी दैट इज गुड। ट्रांजिशन? मुझे ऐसा लगता है इंसान को यू नो चेंज ऑफ लाइफ हम्म चाहिए। और वो भी शायद तब तक था व्हेन आई यूज्ड टू स्टे विद माय एक्स, ही वाज इनटू एक्टिंग अ लॉट। उसने करेक्ट बालाजी के बहुत सारे शो किए थे, एंड मुझे शर्म भी नहीं आती है उसके बारे में बात करते हुए यार। मतलब यार, आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ कि जब तक मुझे लगता है आई शुड नॉट बीइंग विद समवन, आई विल नॉट फॉरगेट माय पास्ट। गलत था, फिर भी देखो याद आ रहा है। होगा होगा, कोई ना कोई तो आएगा आपके जीवन में जो ही विल जस्ट नहीं, कम मुझे बाय मेरा स्टॉर्म। जीवन में कोई नहीं चाहिए अभी। आई एम हैप्पी विद माय सेल्फ। एंड देन क्या पूछा आपने, सॉरी? सो एक्टिंग से इन्फ्लुएंसर हाँ, इन्फ्लुएंसर तो देखो अभी सबसे अच्छी बात ये है, जैसे मैंने बोला, आई एम
प्रोड्यूसर ऑफ माई लाइफ नाउ, वेयर आई मेक कंटेंट, राइट कंटेंट, अपलोड एंड उसका मुझे पैसा मिलता है. आई जस्ट रिसेंटली बॉट एन नेक्सॉन ऑटोमेटिक. मेरे लिए वही मर्सिडीज है, मेहनत की कमाई है, मैंने किसी से नहीं लिया है. विच इज सेल्फ इंडिपेंडेंटली. मुझे आई शुड नॉट आस्क माई पेरेंट्स ऑल्सो. मैंने वैसे भी कभी घर से पैसे नहीं मंगाए. जब मेरा मूड ठीक नहीं होता मेरे पापा समझ जाते हैं. पापा कहते हैं बेटे अकाउंट चेक कर लेना तू तू अच्छे से बात नहीं कर रही है आजकल. तो ऐसा होता है कि जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को मौका मिलता है, लाइक आई हैव गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद सो मेनी सिंगर्स. मैंने दीपिका पादुकोण, मैंने बी प्राक, मैंने सुखी, वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सो मेनी एक्टर्स केम इन माय यू नो एट दिस टर्म कि मुझे उनके सॉन्ग्स को प्रमोट करना है. तो अच्छी चीज़ है, आई एम एंजॉयिंग विद दिस थिंग. बट एक्टिंग का मुझे ऐसा है बहुत टाइम लगता है यार. अगर कोई न्यू कमर है तो सोचना चाहिए, आपके पास उतना बैकअप होना चाहिए. आप बैठो 10 करोड़ की गड्डी लेके एंड यशराज में जाओ टू लॉन्च. वहां काम आता है टैलेंट, वहां आपका लक काम नहीं आता है. मैं अभी एक्चुअली आई एम डूइंग सम वर्कशॉप्स अगेन टू कम इन दिस इंडस्ट्री. और वो आपको भी नहीं पता था ना? नहीं, मेरे को आपका बात हुआ था बीच में, तभी आपने बोला था आपका वर्कशॉप चालू है. हाँ, तो इसी वजह से आई वाज नॉट लाइक यू नो रेगुलर. करेक्ट. तो वर्कशॉप मैं ले रही हूँ विच इज़ गुड इनफ. मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी प्रोड्यूसर ने बोला कि एक्ट नाउ आशी, तो एटलीस्ट मैं प्रिपेयर्ड रहूँ उस चीज़ के लिए. एक्टिंग तो मैटर करती है, आपको उतना एक्ट करना आना भी चाहिए. So you've not launched opposite John Abraham, but you worked with him. मेरा प्यार है वो, मतलब मेरा पति भी हो, मैं उसको छोड़ के भाग जाऊंगा. So how is Not that? in a bad way. Yeah, मतलब since childhood, like only crush of mine is John Abraham. पूरी जनता को पता है कि यार ये लड़की पागल है. Even John, when I met him ना, he's like, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती यार. Again I'm going to meet him. He's such a good person, good hearted guy. मैंने उनसे एक ही चीज पूछी थी, मैं यहाँ पर भी बताना चाहती हूँ जो लोग मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं. मैंने उनसे इंडस्ट्री के बारे में पूछा कि जॉन, यू आर नॉट फ्रॉम द नेपोटिज्म थिंग, बट हाउ डिड यू मैनेज, लाइक यू आर ऑन दैट लेवल, पीपल विल कम टू योर ऑफिस एंड मिलते हैं आपसे. तो ही सेड कि आशी, देयर इज ओनली वन मंत्रा. और वो कहने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ओनली वन मंत्रा कि यू हैव टू रीच एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. वो अच्छी बात है, बट वो होना भी चाहिए. राइट टाइम क्या करेगा? व्हेन कास्टिंग पीपल विल नॉट सेंड माय ऑडिशन टू द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर, व्हाट द राइट थिंग? Never will come. So basically आपका जो जर्नी था वहाँ पे, आप आराम नगर से आपने बिगिन किया था जितना मेरे को याद है. So आप जब भी वो एरिया में वापस जाते हैं तो आपको कुछ फ्लैशबैक्स ऐसे, आपके कुछ इंस्टेंसेस वहाँ के 100% आते हैं. एंड यू नो आई एम डूइंग वर्कशॉप इन आराम नगर. जर्नी एंड घूम के ना चक्रास वहीं पर पहुँच गया है. बट अभी यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी. किससे मिलना है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है काम के लिए, वो चीज़ें आई हैव लर्नड नाउ. So can you say that those rejections have made you stronger? 100%. मतलब कोई इंसान रिजेक्ट करता है तो शायद ऐसा नहीं है. देखो 100% नथिंग कैन बी कम्प्लीटेड. कोई इंसान 100% ना तो परफेक्ट है ना कोई हो सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है इफ समवन इज यू नो एक्चुअली जेन्युइनली टेलिंग मी ऑन माय फेस कि यू शुड लर्न दिस एंड यू शुड प्रैक्टिस दिस, तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लूंगी. वो मेरे लिए ही है गॉड से कि शायद हो सकता है कि मैं इसे बेटर कर सकती हूँ. That's why even you won't believe, अभी I'm doing workshop with निखिल मोदी sir and he is doing great. like बहुत अच्छे टैलेंट्स को वो आगे बढ़ाने के लिए to give you know opportunities कि आप सीखो. और वहाँ पर ऐसा बहुत बार होता है कि मैं कुछ चीज़ें मतलब हंस देती हूँ, बिना बात हंस देती हूँ. तो फिर वो बोलते हैं कि आशी दिस इज वर्कशॉप, यू आर नॉट डूइंग पॉडकास्ट. समटाइम वो फिर मुझे आराम से प्यार से बुलाते हैं और बोलते हैं कि यार तू अभी सीख जा और हम सिखा रहे हैं तो यू हैव टू बी सीरियस. बट दैट टाइम ऑल्सो अभी जैसे उन्होंने थिएट्रिकल एक एक्ट करवाया था इन विच आई हैव यू नो पार्टिसिपेटेड और मैंने पूरा एक्ट बहुत अच्छे से किया. एंड देन लेटर ऑन ही मैसेज मी कि यू शुड डू बेटर. तो मैंने बोला अभी वहाँ अपनी तालियां बजाई थी, व्हाई यू आर डूइंग दिस यू नो मैसेजिंग अगेन एंड अगेन. तो बोले मुझे पता है कि तेरे में पोटेंशियल है, यू कैन डू बेटर. तो दिस काइंड ऑफ रिजेक्शन मुझे पसंद है. Correct. So there was a time where you have taken a digital break as well. Oh yes, needed too yeah, much. so we call it as a digital detox. So you were at a peak at your Instagram career at that given point of time. So why delete your account?
नॉट डिलीटेड परमानेंटली बट Hmm. यस आई हैव टेकन ब्रेक। वो चाहिए, देखो Hmm. माय बॉडी एंड एवरी वी आर ह्यूमन। Correct. अगर हमें कोई ट्रैवल नहीं करने मिलेगा एंड वी Hmm. स्टिक टू द पीपल यू नो, जो हमारी पहले ही बात हो गई थी अराउंड विद रॉन्ग पर्सन Hmm. इन माय लाइफ, तो उसके लिए डिटॉक्स जो है जिंदगी में होना ही चाहिए। यू वॉन्ट बिलीव आई बीन टू विपासना सेंटर आफ्टर Hmm. दैट। Oh. 11 दिन मौन Hmm. व्रत मैंने रखा है एंड उसके चलते मुझे बहुत ज्यादा माइग्रेन इशू, हेडेक भी हुआ है। Hmm. बट दैट टाइम आई रियलाइज यार, अच्छा वाओ दिस इज ऑल्सो लाइफ। मतलब जो Hmm. 45 साल के बाद लोग अडॉप्ट करते हैं 60-70 साल में टू गेट यू नो मेडिटेशन इन माय लाइफ। मैं आज भी अभी गुरुजी को बहुत मानती हूँ, तो वहां पर मैं गई और मैंने बोला कैन आई डू सेवा, तो उन्होंने मेरी एज पूछी, बोले यू आर वेरी यंग फॉर दैट। मैंने बोला ठीक है, मैं घर में मेडिटेशन करूंगी। फिर सो आई वेकअप पढ़ ली, Correct. सदगुरु जी की ऐप मैंने डाउनलोड की है एंड Correct. दिस थिंग्स ना टू मेडिटेट माय लाइफ इट इज चेंज या Correct. बहुत ही मतलब अच्छा लगता है मुझे। अब कोई इंसान बोल रहा है ना, मैं सुनती हूँ कि करूंगी तो मैं अपनी कोई बात नहीं, आई विल नॉट हर्ट माई सेल्फ Correct. अगेन एंड अगेन फॉर द Correct. वन Correct. रीजन। और हर इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। ठोकरे खा खा के इंसान नहीं सुधरा, स्ट्रांग नहीं हुआ तो क्या मतलब है। मेरी एज में शायद मैंने थोड़ा पहले देख लिया वो फेज। So influencers in general, they are always very proactive in every way. But when it comes to societal norms, when it comes to talking about societal norms in terms of issues like rape and abuse and all of these things, they usually stay quiet. So what's your take on that? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ इस चीज़ में एंड इफ़ यू सी ना एनीथिंग इज मिस हैपनिंग Hmm. इवन तो नॉट ऑन द रेप। मुझे लगता है कि कोई भी कंट्री में लड़की के साथ कुछ भी गलत हो रहा है Correct. एंड इट इज़ नॉट अबाउट द वुमेन इज़ रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि वुमेन इज़ अ गॉडेस जहाँ पर उनको हर चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लोग आके उनको सम्मान करें एंड इन टर्म्स ऑल्सो कि वो भी सेम वे में करे, मतलब सेम चीज़ें उनके सामने वाले के लिए करे। द थिंग इज रेप, यस आई हैव हर्ड लाइक इन दुबई एंड बिकॉज मैं दुबई आती जाती रहती हूँ कि Correct. वहाँ पे तो इट्स वेरी बैड, लाइक कौन Yeah. सी वो सज़ा उन्होंने दे रखी है, यू ऑल्सो नो, मे बी Hmm. पीपल नोज। तो ऐसा कोई नॉर्म्स बाय यू नो लॉज के थ्रू आना चाहिए कि इंसान की हिम्मत ना हो कि सामने वाला सोच भी पाए। मतलब पीपल विल अफ्रेड यू नो, कि उनको इतना डर बैठा दो कि ये सज़ा मिलेगी तो यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट। एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, जैसा आपने पूछा, यस मुझे ऐसा लगता है नॉट इवन इन्फ्लुएंसर, जो लोगों ने सिर्फ 200 फॉलोअर पे भी अकाउंट बनाए, दे शुड रेज अ वॉइस ऑन दैट। अगर हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट द वुमेन, पीपल आर डूइंग रेप। छोटे छोटे बच्चे यार आजकल तो डॉगी के साथ कर रहे हैं, सोचो कहाँ गई जनरेसी, कहाँ उनका ह्यूमन नेचर चला गया, आई डोंट इवन नो। Oh my God. कलयुग एंड घोर कलयुग वी आर एंटरिंग इनटू। So how do you maintain your balance while such kind of issues come into play, and how do you maintain your peace of mind? How do you maintain that balance? मुझे ऐसा लगता है कि सम टाइम जैसे बुरे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, हम्म। वैसे बुरी आदतें, बुरी चीजें, बुरी कहानियों को भी इग्नोर हम्म। करना चाहिए, तो जस्ट इग्नोर इट। एंड इससे मेरे को एक दूसरा चीज समझ में आता है, हमारे एक इंडस्ट्री में एक टर्म है कॉम्प्रोमाइज करके। सो आपके हिसाब से ये चीज है कि दैट इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड वर्ड, सो व्हाई, हाउ डू यू से दैट? See, because I felt that personally, like if someone is approaching Hmm. me, yeah, see, I used to stay with my boyfriend. Hmm. I'm not saying I have not done anything, of course, but there I'm not getting anything through his, you know, when someone is into relationship, उनको लगता है कि सामने वाला emotionally connect हो रहा है and you're getting everything, but आजकल लगता है कि हाँ, she's gold digger. It is not about gold digger, but somehow you are serving her, no? You are giving things, that's why she's giving you something, and maybe she needs something, that's why you're involving. तो मुझे ऐसा लगता है So do you compromise. believe in that concept of No, I giving don't something? believe. हार्ड वर्क में बिलीव Correct. करती हूँ यार, 6 साल से I'm क्या? doing struggle. तो मुझे ऐसा लगता है वो केस में I cannot comment. सबकी पर्सनल लाइफ है. In this thing, compromise word, it should like ban in industry. और ऐसे लोगों को भी बैन कर देना चाहिए. When I'll be turn, you know, producer, मैं तो माँ बहन कर दूंगी सच में. मतलब मुझे इतने बुरे लगते हैं when casting people, you know, approaching me कि 3 दिन पहले, सीरियसली थर्ड लाइक 3-4 दिन पहले someone asked me on Insta कि मैडम, you know, I like your profile, send me a number.
आई हैव लिटरली सॉ हिज पेज, क्योंकि मैं ऐसे किसी को भी नंबर नहीं देती हूँ. आई Correct. नेवर एंटरटेन पीपल ऑन सोशल मीडिया और नॉट इन रियल लाइफ. बट देन आई गिव माई नंबर. उसने कैटलॉग्स की फोटो लगाई एंड ही आस्क्ड मी, ओके आर यू रेडी टू डू दिस? मैंने बोला हाँ, आई एम ओके विद द आउटफिट एंड एवरीथिंग, सेंड मी एडवांस सो आई ब्लॉक द डेट. एंड आई सेड नो, इन अदर लैंग्वेज, इन अदर लैंग्वेज. मैंने बोला तू बोलना क्या चाहता है भाई, तू पूरा बोलना क्या बोलना चाहता है. देन ही सेड यू नो कंडीशन वर्क. मैंने आई बहन टके आगे से मुझे फोन मत करना, दफा हो जा. एंड मुझे लगता है कि यार, क्योंकि गर्ल्स आर रेडी टू डू. आज लड़कियों को कुछ मिल नहीं रहा है, घर से सपोर्ट नहीं है, तो व्हाट दे विल डू? अच्छे कपड़े पहनने हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, सो मेनी थिंग्स दे हैव टू मेंटेन टू अपलोड. ऐसे भी लोग हैं 2000 फॉलोअर है, पेड कोलैबोरेशन, कुछ किया कुछ भी नहीं है. मर्सिडीज दे आर रनिंग, सोचो. तो इट्स ऑल अबाउट लाइक जेनजी जनरेशन, और जो लोग गलत टारगेट कर रहे हैं मॉडल्स को. मतलब आप सोचो ना, सामने अगर आज मैंने आई हैव डन लाइक 10 to 12 एल्बम्स इन माय लाइफ, एंड इफ सम कास्टिंग पर्सन डजंट नो अबाउट माय प्रोफाइल, तो मैं यही बोलूंगी ना कि तू जा, या ब्लॉक करूंगी. आई शुड इग्नोर द पर्सन. एंड इफ आई एम रेडी, सो आई थिंक आई एम मैड, क्योंकि दिस आई थिंक वी आर क्रिएटिंग सच इश्यूज. Correct. वी शुड से नो, and it should be like block from the industry. So is that the reason that you don't have a PR team for yourself? आपने आज तक कभी कोई PR टीम रखी नहीं है? नहीं, actually I used to work under Moj entertainment, and when I was like using TikTok as well, मेरे पास बहुत सारा काम था उस टाइम पर. And now तो these days everyone is using, becoming influencer, such things they are creating. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है, I got filter myself, no. तो या आई थिंक पीआर टीम जरूरी नहीं है कि आप शाहरुख खान बन जाओ तब रखो यार. मैं बन जाऊंगी तब रखूंगी शायद. So, do अभी you आई think डोंट that रिक्वायर PR ruins the real talent? 100%. इसका एग्जांपल कुछ? एग्जाम्पल इज लाइक, जैसे मैं एक कंपनी को मैंने हायर किया एंड दे डोंट नो माई नेचर एंड एवरीथिंग, हाउ कैन आई वर्क टू द अदर ब्रांड. तो उनको कई बार ऐसा होता है कि आप कर लो, क्यों? क्योंकि आप घर पर बैठे हो. Correct. तो बेटर टू आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ यार. सिर्फ आपको पैसे देने, आपको अपना लाइमलाइट में नाम लाना है, मैं क्यों करूँ ये प्रोजेक्ट? आई एम नॉट रेडी एंड समवन विल प्रेशर ऑन माई सेल्फ. मुझे लगता है शिट, मैं इतने टाइम से घर बैठी हूँ, मे बी आई शुड डू दैट. सो समहाउ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है चीजें. तो इफ आई एम द ओनर ऑफ माई वर्क, सो व्हाई शुड आई हायर टू समवन? मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी के खुद ही मालिक होने चाहिए. आजकल Correct. मालिक मूवी भी चल रही है. Correct. मालिक. So इसमें बेसिकली एक चीज होती है where there is consistency. डिजिटल पे एक गोल होता है कि you should be consistent. But what is the real consistency? How is it real and how is it different from what your influencer life looks like? इस पर मेरे को ना एक बहुत मेरा पर्सनल चीज याद आ हम्म. गई. आजकल लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं इसलिए नहीं कि उन्हें इन्फ्लुएंसर बनना है, इसलिए बन रहे हैं कि आज उसके पास ये है, आज ये अच्छी दिख रही है, इसको 10 लोग अप्रोच कर रहे हैं. लिटरली पीपल आर जस्ट बिकमिंग, दे वांट टू बिकम समथिंग एंड दे डोंट नो हाउ टू डू दैट, हाउ टू गेट इट. सो कुछ नहीं है. उनको लगता है कि इन्फ्लुएंसर बन जाओ, 10 फोटो डालेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, एंड दैट्स हाउ पीपल विल गिव देम वर्क. बट दैट इज ऑल फेक. आई नो माई सेल्फ, आई हैव पीपल अराउंड मी विद मी जो इन्फ्लुएंसर्स है, उसमें भी अपना टारगेट है, कंपटीशन है, राइट? Correct. जैसे बॉलीवुड में जरूरी नहीं है 100 पिक्चरें चले, ब्लॉकबस्टर हो, वैसे इन्फ्लुएंसर फील्ड में भी आज मेरे पास जो है वो किसी इंसान की क्रेविंग थिंग्स होंगी. व्हाटएवर आई एम हैविंग दैट. लोग बोलते हैं कि आशी दीदी मेरा एक पेज था आईफोन का, गिव अवे मैं करती थी, मे बी आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम. हाँ. तो जहां पर लिटरली अगर मैंने बोला है ना कि यू नीड टू कमेंट लाइक 1 लाख कमेंट, यू वॉन्ट बिलीव उस पर 1 लाख कमेंट आते थे. वहां पर सब लोगों ने लिखा हुआ है लाइक आई नीड आईफोन, आई नीड आईफोन. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई लिटरली क्राइड एंड आई गॉट डिलीटेड माई पेज व्हेन आई सॉ समवन्स क्रेविंग फॉर द फोन. एंड आज हमारे पास फोन है यार, हम यूज ही नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि मिल रहा है कहीं से भी. लड़कियों की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. सो सम पीपल नीड्स जैसे मैंने कमाया है, मेरे जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने कमाया है, बट किसी को ऐसे ही मिल रहा है, मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग हार्ड वर्क. एंड दैट टाइम मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स होना, मुझे वहां पहुंचना है जहां मुझे पहुंचना है. नो वन नोज, मे बी पीपल विल गेट टू नो जहां मेरा रीच है. मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस What is your है. personal growth? Like, what is your personal growth plan? यार मैं अपने आप को देखती हूँ कि इट इज नॉट अबाउट द व्हाट आई एम डूइंग इट ऑन सोशल मीडिया. मैं लिटरली आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स. मतलब मुझे ऐसी ऐसी शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट करनी है आने वाले टाइम में
कि लोगों को लिटरली देख के लगे कि यार या शी रिटन इट। मतलब दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं ना सीरियसली देख के कि मैं इस जगह होती तो मैं ऐसा कर सकती थी। सो आई कंपल माई लाइफ कि यार नहीं, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, शायद ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती है। अबाउट माई लाइफ ऑल्सो मुझे लगता है कि नाउ आई एम दी ओनर ऑफ माई लाइफ। अब मुझे कोई नहीं तोड़ सकता आके। So, in accordance to this only, what is that one thing that you've never spoken out loud and digitally, but you would want to share something over here? लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। मैं सीरियसली मुँह पे किसी को नहीं बोल पाती, बट आई कट ऑफ माई सेल्फ। और बहुत ही बदतमीज़ इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं आज की डेट में, जेन ज़ी जनरेशन। जैसा मैंने बीच में अभी पॉडकास्ट के बोला था कि आई लाइक समवन्स वर्क, तो मैं सामने से मैसेज डालूँगी, आई वुड डेफिनिटली टू वर्क विद यू। एंड देन दे शेयर थिंग्स। यार पर्सनल मत हो ना, आपको नहीं पता ना सामने वाला किस मजबूरी में ग्रो करना चाहता है। दैट्स हाउ देन आई एम डूइंग वर्क सोलो। कोई Correct. बात नहीं, आप करो, ग्रोथ करो। सो आई हैव लर्नड ऑन सोशल मीडिया हाउ टू ग्रो, हाउ टू एडिट। 5-5 हज़ार रुपए एक पॉडकास्ट का एडिट का ले रहे हैं, जस्ट नॉर्मल बेसिक सा। रातों को बैठ के आई हैव लर्नड इट कि एक कवर पेज कैसे बना सकते हैं। सो ओके, आई एम ओके नाउ। So, you said a couple of times during this podcast itself that you want to become a movie producer. So, वो मूवी प्रोड्यूसर क्या आपकी कोई स्टोरी है या क्या आपको आपकी बायोपिक बनानी है? 100%. Not my biopic, but yeah, maybe if I'm getting crores in my life, definitely I will work on that. Correct. I'll be the female actress because उससे ज़्यादा पोर्ट्रे कोई नहीं कर सकता मेरी ज़िंदगी को। तो yes, लड़का हम देखेंगे कौन लेंगे, but yeah, I'll be producing one movie about my life. क्योंकि उससे मुझे लगता है बहुत सारी ज़िंदगी सुधर सकती है। और बॉम्बे में सबसे ज़्यादा जो मैंने फेस किया है ना आने के बाद, व्हाई पीपल आर नॉट रीचिंग टू देयर गोल्स, क्योंकि मोहब्बत में एक बार आने के बाद ना उनके लग जाते हैं लिटरली। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल भी होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे गोल्ड डिगर है, बट कुछ लोग अच्छे भी है। Correct. ऐसा नहीं है कि सब लोग डिच करते हैं, बट कुछ लोग अच्छे भी है। दिस इज हाउ यू आर मीटिंग पीपल। Correct. Correct. तो बस हाँ, आई विल मेक सम बायोपिक। You've won many awards, modeling Yeah, awards, yeah. influencer awards, and everything. What do they add value to your life as? Like, what do they mean to you? They are giving me boost. Hmm. तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन समवन अनाउंस माय पेज इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल एंड आई गो देयर एंड गिव स्पीच, तो मुझे मेरे सारे वो मॉम का, व्हेन माय मदर ड्रॉप मी टू द एयरपोर्ट, और वो सारी चीज़ें, वो लड़की ने मुझे घर से बाहर निकाला, वो सब थॉट्स आते हैं आज भी। नो डाउट, जहाँ आईफा अवार्ड हर किसी की ज़िंदगी का एक टर्नओवर है कि बॉलीवुड में काम करो अच्छे एक्ट्रेस में, आईफा अवार्ड जो मुझे चाहिए, सीरियसली मुझे चाहिए। आई एम हंग्री फॉर दैट, Correct. बट आई एम हैप्पी व्हाटएवर आई एम हैविंग दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो अचीवमेंट्स है उसमें भी आपको खुश होने चाहिए। Correct. Correct. तभी आप शायद आपको सेल्फ इंडिपेंडेंसी आपको मिलेगी अपने काम से, कि आप और अच्छा कर सकते हो। So I think Ashi, we've almost covered everything. Yeah. Is there something more that you would want to talk, or just I just wanted to say one mantra about the relationship and to the professional thing कि आप अगर काम कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको मिलेंगे जो गलत भी बोलेंगे, to do compromise this and that, but just focus on yourself. Just remember your parents' blessing. Always do, chanting and do believe in the God. जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी रिलीजियस से आप हो, just to be positive. एंड कुछ भी गलत मत करो। बॉम्बे शहर है, 10 रुपए से लेके वड़ा पाव से लेके आप ताज की 1000 रुपए की कॉफी तक का सफर आप पूरा कर सकते हो, विच आई हैव ऑलरेडी फेल्ट दैट। तो दूसरा प्रोफेशनल को लेके ये है कि हाँ, आप फिल्टर करो। अगर आपको कुछ नहीं पता, गूगल एक बहुत अच्छी चीज़ है। गूगल, प्लीज़ पे मी फॉर दिस प्रमोशन। तो गूगल एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप लिखो कि कास्टिंग प्रोडक्शन हाउस, 1000 ऑफ कास्टिंग प्रोडक्शन यू विल गेट इन द गूगल। आप वहाँ जाओ, विजिट करो, अपना डेटा दो। डेटा मीन्स ये नहीं कि आप पिक्चर्स दे के आ जाओ। आप अपना वहाँ पे ईमेल एड्रेस होता है, जैसे मैं काम करती हूँ, ईमेल एड्रेस पे अपना प्रोफाइल ड्रॉप करो, डेफिनेटली यू विल गेट द वर्क। एंड अगर आप लिटरली एक्टिंग में आना चाहते हैं तो डोंट मेक कंटेंट। आप पहले डिसाइड करो। जैसे मैंने टर्नओवर कर लिया ना अपनी जिंदगी को कि एक्टिंग देन इन्फ्लुएंसिंग थिंग, ऐसा जरूरी है। आई डोंट वांट टू डू शॉर्टकट इन माय लाइफ। दैट इज व्हाई ये एक बिगेस्ट आंसर था आपके क्वेश्चन का कि आई हैव चेंज्ड माय लाइफ, क्योंकि उससे मुझे पैसे आ रहे हैं टू गिव थिंग्स, बस। So thank you, Ashi. Thank you so much. Thank you so And much. thank you, guys. Thank you for watching Chai with Ilachi. Please stay tuned. Do like, share, and subscribe. Please, Thank you.
Okay, guys, so like, support and comment on his channel because he is doing great. मुझे लगता है कि सारे लोगों के लिए is a very good person जो इन्होंने अभी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जनरेट किया है आफ्टर अ कॉफी विद करण. तो डेफिनेटली आई एम Thank हैविंग you so कॉफी much, विद ma'am. यू. Thank you, और thank you. लिटरली आई फील रियली ब्लेस्ड. Thank you, मुझे ma'am. Thank बहुत you. टाइम बाद किसी शख्स से बात करके अच्छा लगा है और सच में यू आर ग्रेट, डूइंग Thank you. ग्रेट. Thank थैंक you, यू सो Ashi. Thank you. मच. Hi guys, this is Ashi. So we just recently doing podcast on Chai with Ilachi. So do subscribe to his channel, like, comment, and share. Take care. Bye. Lots of love. Mwah.